Hello, welcome to Exam 1. My name is Dinesh. I am a faculty of English. In today's class, we will be talking about English language and comprehension. In this question paper, I am going to teach you some of the important things which are most important from your examination point of view. जो बच्चे IB ACIO की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, and I have made one important practice set for you. And in this class, I want you to pay attention to whatever I'm going to teach from here, and if you have a question in between you can ask me anytime. Okay, so IB ACIO में जो 2024 में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसके आधार पे मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस देयर. ये मान के चलना कि इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यू विल बी एबल टू फाइंड देयर, आपको वहाँ मिलेंगे. तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. IB इंग्लिश 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 1. Number 1, select the most appropriate meaning of the given idiom, burn your bridges. So as I told you last class, and I have told you a number of times about idioms and phrases, we do not use idioms and phrases in everyday situation. That's why we are not able to understand them correctly and properly. What happens in this case? We need to practice them. We need to try to use them as much as we can. But the question is, if we talk to someone in general way, in a simple, we use simple language. So burn your bridges means if you talk about something like this, you are burning your bridges. I have heard many people saying this phrase. इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको. If you burn your bridges, you try to eliminate the possibility of return or retreat. Whatever you have said or done, if you want to get back from there, it is not possible. You make something impossible where you can get back. अर्थात जहाँ पे आप कुछ कर चुके हैं, आपने कुछ बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेड समथिंग टू समवन एंड यू हैव डन समथिंग फॉर समबडी एंड यू वांट टू गेट बैक टू द अर्लियर स्टेटमेंट, और जो आप पहले आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं. इफ यू वांट टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ समथिंग और रिट्रीट करना, तो उससे वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. यू मेक समथिंग इम्पॉसिबल टू कम बैक फ्रॉम देयर. दैट इज कॉल्ड व्हाई आर यू बर्निंग योर ब्रिजेस. ओके, बर्निंग योर ब्रिजेस मीन्स यू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बैक फ्रॉम देयर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी. तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे. यहाँ पे हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस फ्रेज, बर्न योर ब्रिजेस. तो कई बार आ चुका है, IB में आता है, SSC CGL में आ चुका है, NDA में आ चुका है, IB यू कैन से CUET में एग्जाम में आ चुका है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स, देन यू मस्ट know this phrase. This is very important phrase for all of the students who are looking forward to any sort of exams. Burn your bridges means to eliminate the possibility of return, or you are reducing the chances of getting back from something what you have done or said. Question number 2. Choose the option that is correct direct form of the sentence. देखो मिक्स है क्वेश्चन पेपर. प्रैक्टिस सेट में आगे पीछे क्वेश्चन किए हैं. कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, तो कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होंगे, कुछ स्पॉटिंग एरर के होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे. अर्थात डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड देयर इन दीज एग्जाम्स IB में. तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना रखा है. तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और विच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. शी सेड सिंस इट वॉज इवनिंग she had to go for a run. तो यहाँ पे देखिए, she said, comma, since it was evening, she had go for a run. This statement is in indirect speech. तो you have to find out the option which is indirect speech. इसका जो है direct speech आपको ढूंढना है. You have given the sentence into indirect speech. She said since it was evening, she had to go for a run is in the indirect sentence speech. तो she said it is evening, तो यहाँ पे was है तो is माना चाहिए. I must run, rain यहाँ बाहर पहना, देखो rain हो रहा है. देखिए हम बता देता हूँ आपको, ऑप्शन में यहाँ रन का rain हो रहा है. देखिए ये बाहर हो रहा है, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी देखिए, she said it is evening, I might, तो यहाँ might बाहर हो रहा है. देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ might is wrong here. ऑप्शन सी, she said, comma, it is evening, I should नहीं आना चाहिए भाई. देखिए had और यहाँ should का कोई लेना देना नहीं है. और ऑप्शन डी,
शी सेड इट इज इवनिंग आई मस्ट गो फॉर अ रन। मस्ट का पास्ट होता है हैड, मस्ट का पास्ट होता है हैव टू, हैज टू एंड मस्ट। देखो तीनों का पास्ट होता है, एक होता है आपका हैव टू, एक होता है आपका हैज टू, एक होता है आपका मस्ट। इन तीनों का एक ही पास्ट होता है भाई, वो होता है आपका हैड टू। तो मेक श्योर दैट दिस सेंटेंस इज करेक्ट। She said it is evening I must go for a run, इसका indirect speech हो जाएगा she said since it was evening we change tenses and is MR का पास्ट होता है was और was। तो सेंटेंस जो है indirect speech में था, उसका डायरेक्ट होगा आपका she said it is evening I must go for a run, you must go for a run। must का पास्ट होता है had, तो हमने had को पकड़ लिया। क्लियर? अगर आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है तो ध्यान रखना, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं। सी सेड है तो अभी सी सेड टू मी हो जाता है, तो सेड टू का टूड हो जाता है, सेड का सेड ही रहता है। उसके साथ साथ इज एम आ रहा था तो वॉज अ वर्ब आ जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड टेंसेज वेरी वेल देयर। इफ यू वांट टू सॉल्व इनडायरेक्ट स्पीच देन यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ऑन टेंसेज। टेंसेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए और कौन सा टेंस किस में बदलता है। तो यहाँ पे जो है इतना पता होना चाहिए कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, हैज टू, हैव टू एंड मस्ट, इन तीनों का एक ही पास्ट होता है। इंग्लिश में होता है आपका हैड टू। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। जहाँ पे हैज टू या हैव टू आता है उसका पास्ट हो जाएगा मस्ट, एंड व्हेनेवर यू हैव मस्ट, इसका पास्ट होता है, मस्ट का अपना पास्ट नहीं है तो इसका पास्ट होता है हैड टू। तो यू हैव टू, हैज टू एंड मस्ट, इन दीज थ्री मॉडल्स जो होते हैं, दीज मॉडल्स का जो पास्ट है वो होता है आपका HAD हैड टू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 3. Select the most appropriate option to fill in the blank. In the early autumn fires, fighting took place. The dash Serbians bearing a prominent part. They played a very prominent part. अगर prominent part करता है इसका मतलब उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पे युद्ध लड़ा होगा, तो बहादुरी दिखाई होगी। तो कावर्डी का मतलब क्या होता है आपका? डरपोक। तो ये तो बाहर हो रहा है आपका। अनबेस्ड का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस करा इन द अर्ली ऑटम फायर्स फाइटिंग टू प्लेस द gallant Serbians bearing a prominent part. GALLANT. The sentence is talking about bravery, boldness. तो यहाँ पे हो जाएगा gallant. gallant का मतलब था brave. तो ऑप्शन सी will be the correct option here. ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे देखना आपको जिस वर्ड की स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट that word which is wrongly spelled here. A ways, B fitter, C courser और D है आपका, D is course। तो यहाँ पे B C D फिटर, कुरियर एंड कोर्स, इन COURSE कोर्स, अर्थात तीन के तीन सही हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। देखिए ऑप्शन ए वाला आपका जो है रॉन्ग है। ऑप्शन ए में होना चाहिए इट शुड बी WASE, वेस। इट इज नॉट वेस बल्कि वेस है, वेस। WASSE इट इज नॉट करेक्ट, इट इज WASE। यस। क्वेश्चन नंबर 5. द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब टॉकिंग अबाउट पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इन इनडायरेक्ट स्पीच we change tenses. However, in active and passive voice we change verb. कहते हैं ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है केवल वर्ब की बात, टॉक्स अबाउट वर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ पे वर्ब चेंज होती है, वहाँ पे टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना वर्ब के आधार पे हम सेंटेंस को चेक करेंगे। वॉइस इज ऑल अबाउट वर्ब्स, हाउएवर नरेशन इज ऑल अबाउट टेंसेस। द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में है वसंत हैज डिलीवर्ड द स्पीच। अब हैज का हैज बीन होता है, ध्यान रखना। अब एक चीज यहाँ पे अगर आपको पता है कि सेंटेंस में हैज का हैज बीन होता है लेकिन टेंस नहीं बदल रहा है, लेकिन वो बदल जाती है, तो यहाँ पे हैज का हो जाएगा हैज बीन। तो हैज बीन किस मारा? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वी हैव और हैज। ओके, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, एक्टिव वॉइस। व्हेन वी ट्रांसफॉर्म दिस इनटू पैसिव वॉइस वी यूज हैज बीन और हैव बीन। हैव का हैव बीन हो जाता है और हैज का हैज बीन। दैट्स व्हाई यहां से हम ऐसे पकड़ेंगे हैज बीन वाला सेंटेंस कहां जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन वसंत डिलीवर्स स्पीच ऑन टाइम, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन बी देखिए द स्पीच वॉज यहां से गलत हो रहा है। देखिए ऑप्शन सी देखिए द स्पीच वॉज, फिर बाहर हो गया। अभी क्या बोला था मैंने? द स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय
हैज बीन डिलीवर्ड बाय वसंत, हैज और हैज बीन डायरेक्ट ऑप्शन में जाएगा, विद इन 2 और 3 सेकंड यू विल गेट योर आंसर देयर। क्लियर हो गया? तो इसके लिए भी टेंस आना चाहिए। इफ यू नो द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट इज कॉल्ड हैव एंड हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, किसमें? एक्टिव वॉइस में। व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव एंड टू पैसिव वॉइस वी नीड टू यूज हैज बीन और हैव बीन। तो स्पीच क्या आपका? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? हैज का हैज बीन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबडक्ट, एबडक्ट से बनता है एबडक्शन, किसी का जो हम इफ यू टेक अवे समवन फोर्सफुली, किसी को फोर्स करके आप ले जाते हैं, अपहरण करना, यू कैन से taking someone forcefully, okay? If you compel someone to go with you and you take him forcefully, that is called abduct, is a verb। इसका अपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिडीम करना, बनाए रखना, अर्थात किसी को बहाल कर देना, अर्थात इसको अरेस्ट नहीं करना। एबडक्शन से बनता है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब किसी को फोर्सफुली लेना, इसका मतलब रिडीम विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन ए। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिडीम। Question number 7. Some part of or one or more sentences have been jumbled up and labeled A B C D. आपको A B C D में दिया गया है, आपको क्या करना है कि अरेंज करना है, और यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी होता है, अगर आप देखते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो चुका है। देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, अब आता है यहाँ पे, अब लिंक ढूंढते हैं। ऑफ नहीं आ सकता, फ्लिक्ड ऑन अर्थात सी अ स्विच, स्विच्ड sensitized a switch somewhere and the nursery light flicked on, CB 10 feet of it, BA और लाइट देखो CBAD, ऑप्शन बी जा रहा है। देखो कैसे किया मैंने, इतनी जल्दी देखना है। पहले आप लगाइए देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, उसके बाद किसमें आएगा? सी ऑप्शन आगे बढ़ा रहा है। अ स्विच समवेयर एंड द नर्सरी लाइट, क्या? फ्लिक्ड ऑन, लाइट फ्लिक्ड ऑन, लाइट फ्लिक्ड ऑन व्हेन दे केम विदिन 10 फीट। लाइट का फ्लिक्ड ऑन के साथ लिंक है, और यहाँ पे 10 फीट का किससे? ऑफ इट, इसके 10 फीट तक, इसका केम विदिन 10 feet of it. 10 feet of it is a combination. Similarly, behind them in the halls, lights went on and went as they left them behind with a soft automaticity. Automaticity इसका मतलब ये बनेगा आपका the concluding sentence will be D. तो CBAD ऑप्शन B will be the correct option here. यहाँ हो जाएगा C का लिंक B से, B का लिंक A से, A का साथ D, अर्थात CBAD will be the correct option here. ओके, सो कैसे करते हैं हम बताते हैं। पहले हमारे पास सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, आपके पास सब्जेक्ट इज गिवन देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, क्या? व्हाट? अ स्विच। देखो सी के साथ आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। सी का कॉम्बिनेशन लिंक किसके साथ है? बी के साथ है। बी किसको दिखा रहा है? आगे बढ़ा रहा है 10 feet ऑफ समथिंग, 10 feet ऑफ इट, तो इसका कॉम्बिनेशन दैट्स ऑल, दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ लिंक। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate meaning of the given idiom and phrase. Save your breath. Very important phrase, and I have seen this word a number of times in different sort of competitive as well as entrance exams. So make sure that you understand this phrase and learn it and use this as many times as you can in your daily routine. Save your breath, and we use this a number of times when you talk about to someone and we express yourself. Okay, to make an effort that will be futile. If you save your breath, you are not going to make efforts, अर्थात to make an effort that is, you are making effort that will be of no advantage, you will not get any advantage. इसका मतलब था to make an effort that will be futile, useless. Futile means useless, बेकार, आप जो कर रहे हैं, if you are saving your breath, save your breath to make an effort that will be futile. ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम जो जिसका कोई फल नहीं मिलता, इसका मतलब बेकार। Do not save your breath. Okay, if you save your breath, you are making an effort and that effort will not work for you. इसका मतलब होता है कि आप जो एफर्ट करते हैं वो आपके काम नहीं आता, अर्थात दैट इज कॉल्ड एक तरह से यूजलेस, अर्थात फ्यूटाइल हो जाता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है कि आपके काम नहीं आता, यूजलेस है, बेकार। सो इफ समवन सेव्स हिज ब्रेथ, ही मेक्स एन एफर्ट एंड सच एफर्ट विच दैट डज नॉट वर्क फॉर हिम, जो उसके लिए काम नहीं करता है, इसका मतलब डू नॉट डू दिस, ऑप्शन ए। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं
वो उनके लिए है participants were dash a meal of steak and french fries under dim light. देखो कहीं भी आप जाते हैं, whenever you have been invited by someone to dinner or party or somewhere you go and you know that you are served, okay, and you are served, क्या आपको सर्व किया जाता है, मील क्या होता है, सर्व होता है, सबको दिया जाता है ना, पार्टिसिपेंट वर सर्व्ड अ मील, ओके, एंड कभी आप दूसरों को खाना खिलाते हैं, यू सर्व मील इन अ पार्टी और समवेयर इन वेडिंग में आप जाते हैं तो आप मील सर्व करते हैं ना, आप अपने दोस्तों को अपने मित्रों को जो है सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो सर्व करने का मतलब यू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, और सर्व करना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, एवरीबडी नोज अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब यहाँ पे जिसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक ग्रुप सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस करना. वी आर गोइंग टू रिप्लेस द एंटायर सेंटेंस विद वन पर्टिकुलर वर्ड which will be the same as the entire sentence. For example, one who does not express oneself freely. If you are not able to express yourself, it means you are called introvert. एक होता है extrovert, a person who expresses himself properly and accurately, that is called extrovert, EXTROVERT. लेकिन यहाँ पे है उसका अपोजिट introvert. Introvert आदमी कौन होता है? C option. Option C, introvert means a person who does not express himself freely and he has got some hesitation while speaking something. कोई चीज बोलने में हिचकिचाता है and he has some shyness on her face. He is shy. He is not confident enough. If you are not confident enough, you will be called introvert. शर्माते हैं ना आप. Whenever you want to say something and you are not able to express and you are not able to put your thoughts in front of people, and you are not able to express your feelings or emotions or opinion in front of someone else, it means you are called an introvert person. Okay, if you can express yourself without any hesitation, you will be called an extrovert person. This is called introvert, और वो होता है आपका extrovert. तो ऑप्शन सी हो जाएगा, a person who does not express himself freely and properly is called introvert. ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट. कभी कभी इसके बारे में आता है तो वो एक्सट्रोवर्ट वाला आ जाता है, अ पर्सन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली एंड एक्यूरेटली या प्रिसाइजली एंड कॉन्फिडेंटली, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सॉरी. यहाँ पे इंट्रोवर्ट है तो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट. तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 11. Choose the word that means the same as the given word. Fetish. Fetish का मतलब होता है if you are fetish you are called fashionable. Fetish में होता है fashionable. You talk about fashion and you like it very much in your life. So fashion से बनता है fashionable. तो fetish means option D, fashionable. 11, 12. Select the most appropriate one word for the expression given. One word means होता है आपका a sentence has been given to you and you have to replace with one word which means the same as the entire sentence, as the whole sentence. You can say a person who cannot speak, who can speak, okay? A person who can speak multiple languages. A person who can speak multiple languages is called what? If you are able to speak more than one language, many languages, or you can say several languages, कई भाषाएं आप बोल सकते हैं, you are called polyglot. POLYGLOT, polyglot. A polyglot means a person who is able to speak many languages या a number of languages or multiple languages or some languages. कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है. Sometimes you will find a question, a person who can speak several languages. ऑप्शन होगा यही. Sometimes you will have question, a person who can speak many languages. Option will remain the same. Sometimes you will have a question, a person who can speak some languages altogether. That is called polyglot. Same question. Question can be asked in many languages, multiple languages, several languages, or number of languages. You can say. This is called option B. Option B will be polyglot. Okay. Here we are. Question number 13. Fill in the blank with an appropriate option or suitable option. Dash threats to elephants. Threats to elephants requires public and political
political will to take action. Okay, when we talk about something, when we address something, we want to say something to someone, in front of someone, or you can say address karna, addressing. Okay, that will be option B. Addressing threats to elephants requires public and political will to take action. क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन addressing. एड्रेस से बनता है addressing. ऑप्शन बी will be the correct option here. Question number 14. Select the word that is closest in the meaning of, that is called synonym or similar word to the word given below, that is called depressed. Depressed से बनता है आपका depression. Depression, if someone is in depression, okay, if you are depressed, you are sad, you are melancholy, you are indifferent to anything. Depressed क्या होता है? Depression में क्या है? जब आदमी depression होता है तो he is not able to understand what is right and what is wrong. He is, totally indifferent to his life. When you are in depression, you are totally, or you can say utterly indifferent to your life, and there is no enthusiasm in your life, and there is no enjoyment in your life. You don't feel good, and you feel bad all the time. Okay, depression ही होता है. depression में आदमी कोई अच्छा नहीं लगता. If you are in depression, then you are not feeling good. Okay, you are sad all the time, and you have got different sort of negative thoughts in your mind. Depressed. इसका opposite हो जाएगा when you are in peaceful mind. You can say you enjoy yourself, you enjoy your life. Doleful. D-O-L-E-F-U-L. Doleful. इसका opposite word is option A हो जाएगा आपका doleful. Question number 15. Some part of a few sentences have been jumbled up here. Jumbled sentences को हम बोलते हैं parajumbled. Jumbled sentences, jumbled words अलग होते हैं, jumbled sentences हैं, or you can say rearrangement of sentences also called. Okay, these are called rearrangement of sentences or jumbled sentences. What happens in jumbled sentences? When we have A, B, C, D and P, Q, R, S like this, we have got 4 sentences. That these 4 sentences make a meaningful paragraph once they are rearranged. Okay, जब तक rearrange नहीं होता तब तक क्या होता है, to and fro होते हैं, तो उनका क्या होता है, आगे पीछे होने में वो meaningless हो जाते हैं. They do not express proper meaning. So इसके लिए हमें क्या करता है, we need to have a good hold on grammar and its uses. जितने भी parts of speech होते हैं, through them we will be able to find out the link. And सबसे पहले आता है, the first thing is here, that is called subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है, बचपन में हम जब when we start learning English or language, we learn subject, verb and predicate, या subject, verb or object. So this combination is very important, and apart from this there are so many things in the English language which are going to tell you about the link. Link can be found out in these areas. If you want to get the correct option, link, you will be able to find out link from noun, pronoun, adverb, adjectives, preposition and conjunctions as well. Conjunctions are very important. So A, B, C, D देखिए कैसे दिया है. A would have been unbearable, had the feel of his hand clutching mine, his I not had my brother, I never forgot, refusal to abandon me, perhaps he and I would have been close even otherwise. देखो बिल्कुल जिगजैग हो रहा है. अब इसको हम एक सेंटेंस बनाते हैं. ऑप्शन है A, C, B, D, D, B, C, A, C, B, D, A and B, C, D, A. Let me find out the opening sentence of the paragraph. ओपनिंग सेंटेंस होगा, जो सब्जेक्ट होगा वहां से हम शुरू करेंगे. would have been unaware, यहाँ पे the feel of his hand, his कैसे आ जाएगा जब हम किसी की बात नहीं करेंगे, तो B ऑप्शन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते. I not had my brother, ये भी बात की बात कर रहा है, कंडीशन सेंटेंस है. The sentence is about conditions of the past, कंडीशनल सेंटेंस है, अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात कर रहा है, देखना है. रिफ्यूजल ऑफ अबंडन, अर्थात A, B, C, D में से अगर हम शुरू करते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका A से सेंटेंस शुरू होने की कोशिश कर रहा है. would have been unbearable had the feel of his hand, his आ रहा है ना. ओके, would have been, अच्छा सॉरी ऊपर से सेंटेंस दिया है भाई, आपको ऊपर से दिया है सेंटेंस, यहां से दिया, ये है my ears से सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है. ओके, ये है आपकी ओपनिंग लाइन. my ears in my father's house, स्टेटमेंट आपके पास है. अब आगे बढ़ाएंगे. my ears in my father's house would have been unbearable, अब आ रहा A.
तब आ रहा कंडीशन आ रही है वुड हैव बीन अनबियरेबल हैड आई नॉट, ए का सी ए सी, इसका मतलब ऑप्शन नहीं चलेगा, बस हो गया, इतने में हो गया। फिर इसका बी आएगा द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, हिज refusal to abandon me, perhaps he and I would have been close even otherwise। कंडीशन है ना, my years in my father's house would have been unbearable had I not, का मतलब if I had not, had यहां से देखिए had I not means if I had not had my brother there, I never forgot, यहां से आ रहा द फील ऑफ हिज हैंड, इसका मतलब हो जाएगा ACBD। द सेंटेंस इज अबाउट पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, जिसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए वुड हैव बीन डूइंग समथिंग, वुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म है वुड हैव बीन, और यहाँ पे हैड को इन्वर्जन में हम कहते हैं इफ आई हैड या हैड आई, बोथ आर राइट। If you had been there or had you been there, both are right. Inversion means होता है we get the helping verb first, followed by subject. Okay? तो यहाँ पे इस टाइप से सेंटेंस बना है तो हो जाएगा ऑप्शन ACBD। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, choose the word that can substitute the given group of words। A person who has given up their beliefs, जिसने a person who has given up their beliefs and religions, उसे क्या कहेंगे? Tell me। ऑप्शन सी apostate में होता है पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड, वन वर्ड हम कहेंगे इसे apostate। क्वेश्चन नंबर 17, दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्पॉटिंग एरर्स और यू कैन से कॉमन एरर्स, एंड कॉमन एरर्स आर ऑल अबाउट ग्रामर एंड इट्स यूजेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस वेरी वेल, व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड which part of the sentence has got an error। If you think the sentence does not contain an error, you should go for option D, that means no error at all। Let me read a sentence for you। Shyam, so good with weapons, failed to find the words to tell him that everything he had done so far, all the compromises he had made, had been for love। Option A, to tell him that everything he had done। Shyam so good with weapons। As you know guys, this is very important question and most of the students make a mistake here like this because we understand in Hindi first, that's why we make a mistake। Do not try to translate from Hindi to English in the English language, because अगर हम किसी अच्छे होते हैं तो we कहते हैं you are good at English, he is good at mathematics, I am good at English, he is good at Hindi, good at something or bad at something। This is one kind of phrase, you can't say he is good in English, you say good at something, good at। तो ऑप्शन बी में देखिए बच्चों, यहाँ पे आ रहा है आपका गुड के साथ हम जो विद है ये नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा गुड एट। श्याम सो गुड एट वेपन्स, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? तो कभी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो गुड के साथ क्या लगा देता है, देखिए इसको करेंगे हम गुड के साथ वहां लगा देगा वो इन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यू विल फाइंड गुड इन, गुड विद, good for, something like this। तो make sure that if you have adjective good there, it must be followed by at, good at, brilliant at, and bad at। तीन एग्जाम्पल देता हूं मैं, good at something, brilliant at something, as well as bad at something। If you are not doing well somewhere, you can say he is bad at mathematics, he is bad at physics and chemistry। If you are good at something, you are good at physics or chemistry or English or mathematics, whatever you say, good at something or bad at something। This question can be asked a number of ways in your exams। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया बी वाला ऑप्शन करेक्ट। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। This question is also based on spotting error or you can say common errors that will truly be a milestone to celebrate। truly being, that will cannot be followed by been। been कहाँ पे आता है भाई, have been, has been, will have been, shall have been। अर्थात परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे been का बी का थर्ड फॉर्म भी been होता है, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बी की थर्ड फॉर्म होती है been, तो यहाँ will के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सी ऑप्शन जा रहा है, बी को हम been की जगह हम क्या लिखेंगे बी, दैट्स इट। दैट विल ट्रूली बी a milestone to celebrate। Option C, we will replace been with simple be।
बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, एंड विल के साथ यहाँ पे बीन का यूज नहीं, तो विल हैव बीन होता है बट नॉट विल बीन. ओके, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, बट नॉट विल बीन. विल बी, इट विल बी, विल बी. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग. सिनोनिम. सिनोनिम ढूंढना आपका. थ्रिफ्टी. हु इज थ्रिफ्टी? टेल मी. थ्रिफ्टी इज अ पर्सन who does not spend anything carelessly. अर्थात यू कैन से थ्रिफ्टी होता है जो केयरफुली हर चीज का ध्यान रखता है. इफ यू आर स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट स्पेंडिंग मनी, तो थ्रिफ्टी पर्सन होता है थोड़ा सा अपने बजट का ध्यान रखता है, अनाप शनाप खर्च नहीं करता है. थ्रिफ्टी पर्सन होता है एक तरह से माइजरली, अर्थात मैनेज करता है अपने आप को, अर्थात थ्रिफ्टी पर्सन होता है एक तरह से कंजूसी के साथ खर्च करता है. माइजरली यू कैन से. तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रूडेंट. प्रूडेंट क्या होता है? केयरफुली. इफ यू आर प्रूडेंट, you are going to take care of each and everything in your life, especially if you talk about money. तो thrifty होता है prudent, P-R-U-D-N-T. इसका जो synonym हो जाएगा prudent, careful about something. Question number 20. Choose the correctly spelled word. Correct जिसकी spelling है उसको चूजिए. Temporary wrong है. कैमोफ्लॉग रॉन्ग है. टैबू भी रॉन्ग है. सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है. PSE सिडोनिम. सिडोनिम. ओके, ये है आपका पहला. केवल सी की स्पेलिंग सही है भाई. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट.